this is chapter life processes, and you are going to understand now this. So, life processes are the processes which are the organism perform and performs four main life processes, that is nutrition, respiration, and excretion and transportation. So we'll start with the life process nutrition. It is defined as the process of intake of nutrient and its utilization by organism in various biological activities. There are two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. And this you can see there is a bacteria which is having a large number of filaments, and this is a paramecium which is having cilia. So it is going to eat the food or feed the its food from uh, the cilia with the help of cilia. This is euglena. It is also protozoa. Autotrophic nutrition is having the process of photosynthesis. You can see from one side light energy is coming, and the chlorophyll absorbing the light energy, and the carbon dioxide and water molecule that they are added. In the presence of light, the glucose is formed, oxygen is produced, and water molecule is released. A kind of nutrition in which an organism prepares its own food by the use of raw materials like CO2, H2O. The use of chlorophyll molecule in presence of light is the autotrophic nutrition. So ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हो. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप जैसे देख रहे हो कि जिराफ जो है वो पत्ते खा रहा है, तो अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फूड के लिए तो उसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा गया है. देन सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो फंगस से हो रहा है. फंगस जो है सो तीन स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के. वो ये हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, एंड splitting of water molecules and into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. This is the major step. These are the major step, three steps. This you should know. It's given in NCRT, where the plant take in carbon dioxide. It takes the carbon dioxide to stomata. This is the microscopic view. You can see these are the bean-shaped guard cells having large number of chloroplast in it. So when the guard cells are full of water, the stomata is open, and when guard cells are losing water, the stomata is closed. Epidermal cells are there, subsidiary cells are there, chloroplast is there, and guard cells are there. Stomatal aperture is there. So with this stomatal aperture, the air exchange can take place. Plant can take in carbon dioxide, and it can release the oxygen, which is produced as a byproduct in the photosynthesis. It can also release excess water through this opening called stomata. Opening is the stomata, and the is guarded by its size is controlled by the guard cells. Depends on the guard cells. What is the condition of guard cells? If the guard cells is having water, then we can say that the guard cells is full of water, and therefore it is making the stomata open because of the stretching. Guard cells are stretching because of water amount, and it is stretched, therefore the water is present in them. They are turgid, and so the pore is in open condition, and when guard cell will lose the water, they shrink, the pore will be in the closed condition. Opening and closing of stomata. This is the
whole reason. Opening and closing of stomata take place due to the changes in turgor pressure of guard cells. During the day, water from subsidiary cell enter the guard cell, making the guard cells fully turgid and the stomata open. During the night, water from the guard cells enter the subsidiary cells, and as a result, the guard cells become flaccid due to decrease in turgor pressure. The stomata close. Stomatal mechanism. जब गार्ड सेल्स पानी लूज करेंगे ट्रांसपिरेशन की वजह से, तब वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा. अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपके स्टेप्स दे रखे हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन. डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो. जब वो सीडोपोडिया के थ्रू कुछ भी बैक्टीरिया अंदर आ रहा है तो दैट इज इंजेशन और इसको फैगोसाइटोसिस बोला गया है. देन फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो रहा है फूड वैक्यूल के अंदर. देन जब फाइनल पार्टिकल्स में बदल गया है तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो गई है. These are the steps with labelings. Amoeba senses the food. Pseudopodia like finger-like projections are formed around the food. The food is enclosed in food vacuole, and slowly enzymes are produced inside the food vacuoles, and the food is digested into the soluble material. Then the food is absorbed by the amoeba and it's used by the amoeba, and the waste is released, expelled. Now about the human being. In human being, the food is going inside through the mouth, and then it is passing from the esophagus. In the mouth, what happens? The salivary glands are releasing the saliva, and saliva is full of salivary amylase. Starch, another name is amylase. So amylose. So its breaking enzyme is known as amylase. So enzyme को break करने वाले किस चीज को एंजाइम ब्रेक कर रही है उसी के ऊपर एंजाइम का नाम रखा जाता है. अगर अमाइलोज को तोड़ रही है तो उसको अमाइलेज बोला जाता है. एएससी वर्ड जोड़ने से, यानी कि वो ब्रेकिंग एंजाइम है. देन ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है तो फूड अपर से स्टमक तक चला जाता है. देन स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो आपके 3 तरह की चीजें प्रोड्यूस करते हैं. HCl प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं स्टमक में, mucus producing cells, and pepsin named enzyme producing cells are there in the stomach. So stomach mucus which is produced is sticky substance, thick substance. तो वो mucus के अंदर की लेयर को कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन करने के काम करता है, बिकॉज स्टमक HCl भी प्रोड्यूस करता है. HCl स्टमक की वॉल को बर्न ना कर दे, इस वजह से म्यूकस उसको लाइंड रखता है हमेशा. HCl का क्या फंक्शन है कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है स्टमक का, क्योंकि पेप्सिन एसिडिक इन्वायरमेंट में ही काम कर सकती है. पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है. जैसे कि माउथ में सलाइवा के अंदर स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम थी अमाइलेज, वैसे ही स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पेप्सिन. देन लीवर जो है वो बाइल बना के रखता है. बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर और वो गॉल ब्लैडर में आके स्टोर्ड रहती है. देन स्टमक के बाद जो फूड है, आफ्टर 1-2 hours it passes into the first part of small intestine, and from there it is going inside the coiled tube of the small intestine. In there along with it pancreas also releases its enzyme. तो pancreas के 3 एंजाइम हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज, जिसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, अमाइलेज इज your again starch digesting enzyme, pancreatic amylase it is called. And then there is lipase, as the word suggests. Lipase means lipid breaking. So lipid breaking enzyme is there which is produced by the pancreas. So before the lipase can act on the lipids, because lipids are very complex in nature, so what does bile do? बाइल जो लीवर बना रहा है वो टेम्पररी गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है, पर जैसे ही फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो बाइल भी गॉल ब्लैडर से रिलीज कर दी जाती है. सो बाइल का काम डिटर्जेंट लाइक होता है, वो बिगर फैट पार्टिकल्स को स्मॉलर फैट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है. इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं. तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज द एक्शन ऑफ लीवर, बाइल प्रोड्यूस्ड बाय लीवर. अब फैट क्या हो गए हैं, स्मॉल फैट्स बन गए हैं. अब उनको आराम से लिपिड ब्रेकिंग एंजाइम जो कि पैनक्रिया बना रही है लाइपेज, वो एक्ट कर सकती है उनके ऊपर. तो नाउ द फूड इज
coming into the small intestine, and in small intestine also releases finally, we can say, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने वाली इंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन ही रिलीज करता है, उसको उन एंजाइम वो चीज़ों को मोनोमर्स में बदल देती है. Now, small intestine is having such enzymes like maltase, nucleases, proteases. So this will convert the uh, final digestion will be converted of the whatever things are there left, because food will remain for the larger time in the small intestine. So small intestine will do the complete digestion, and small intestine की inner surface में एक और structures important है villi, जो कि finger like projections होते हैं inner lining में, that increases the surface area of absorption, and so that the food digested that is completely digested can be absorbed by the blood vessels. अब now the undigested material passed into the large intestine, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो विलाइज होती हैं वो वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, एंड फाइनली जो वेस्ट होता है थ्रू एनस इट इज रिलीज्ड आउटसाइड. यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप माउथ के अंदर सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन बताया है. स्टार्च is having the salivary amylase enzyme. Starch को sugar maltose में it is converting. Esophagus में food through esophagus it is moving, and food is moving and it's reaching the stomach through peristaltic movement. Means semi uh, halfway we can say कभी रुक रही है. Staltic means it is स्टॉपिंग एंड देन कंटिन्यूइंग, स्टॉपिंग एंड देन कंटिन्यूइंग, इस तरह की स्मूथ मसल्स की मूवमेंट होती है फूड पाइप में, तो इसको पेरिस्टाल्टिक बोलते हैं. नाउ ओरल कैविटी में माउथ में टीथ है, टंग है, ये च्यूइंग में और मिक्सिंग में हेल्प करते हैं फूड को. एंड ह्यूमन टीथ अलग अलग तरह के टीथ हैं, and they help in the proper grinding of the food material, mixing it with the saliva. Glands hai, these are the 3 glands which are producing the saliva. Lower jaw ke niche, then your upper jaw ke paas parotid gland, and जीभ के नीचे sublingual gland. 3 pair of glands are there. Food pipe में आप देख रहे हो there is an upper esophageal sphincter, and stomach में भी एक sphincter है. दोनों जगह muscular gateway है और बीच में से food pass होता हुआ आपको दिख रहा है. So this is the way peristaltic movement food go from the mouth, it is transferring it into the stomach. स्टमक में वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बताए हमने, और 3 मेन थिंग्स विच आर प्रोड्यूस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस. देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इस तरह के दिखते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंजाइम्स रहती हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने जो बताया फाइनल डाइजेशन हो जाता है, तो पेप्टोन्स अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं, माल्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है, सुक्रोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल जाता है, इमल्सिफाइड फैट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल जाता है. लीवर बाइल सिक्रीट करता है, और बाइल डक्ट के थ्रू वो पास होती है इंटेस्टाइन में थ्रू गॉल ब्लैडर. जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है उस वक्त गॉल ब्लैडर से वो निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर हो जाती है. पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रिया की एंजाइम्स रिलीज हो जाती हैं. पैनक्रियास की अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज इनकी एंजाइम होती है. ये इमल्सिफिकेशन का डायग्राम है. लार्ज ऑयल ड्रॉपलेट, छोटे छोटे स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स में थ्रू द एक्शन ऑफ बाइल इट इज कन्वर्टिंग. देन स्टमक, and this is the positions of various internal organs, and basically intestine, small intestine बीच में रखी हुई है, और large intestine उसके ऊपर से loop हो रखी है. ये आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में. तो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द अपेंडिक्स रीजन की तरफ से वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर जाती है. देन इट इज असेंडिंग, मूविंग अपवर्ड, देन इट इज मूविंग ट्रांसवर्सली, horizontally, then it is moving downward, and then it is coming the till the anus. This is the large intestine. These are the villi, intestinal villi. An inner structure of villi is there, which is you can see there is lymph vessel which is green in color, which is shown in the center. There is lymph vessel which is called lectile, which is helping in the absorption of
digested, we can say fatty acids, because they are only absorbed by lymph vessels. Then arteries on the one side shown in the red color, and veins on the other side, and in between there is capillary network. So these are the blood vessel supply inside the villi. So this is the internal lining of intestinal villi. इंटेस्टाइन के अंदर की लाइनिंग में है, तो डाइजेशन भी वहाँ कंप्लीट हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, सारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब भी विलाइस के थ्रू हो जाता है। इस चार्ट से आप समझ सकते हो कौन से पार्ट में क्या चीज डाइजेस्ट हुई है और किस चीज में कौन से पार्ट ऑफ फूड का डाइजेशन हुआ है। सो दिस कैन हेल्प यू in understanding that which part is absorbing what is the function of various different parts of the digestive system. Then respiration, what are the two types of respiration? Anaerobic, aerobic. On the basis and presence and absence of oxygen it is called. And anaerobic and aerobic का difference between दे रखा है। 3 पॉइंट्स पे डिफरेंस है, एक किधर हो रहा है, कौन सी पार्ट में, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इन्वॉल्व हैं तो एरोबिक, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है एनारोबिक। एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं? एरोबिक में फाइनल प्रोडक्ट्स, फाइनल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होगा, और एनारोबिक में हमेशा इंटरमीडिएट में चेंज होगा, या अल्कोहल बनेगी या लैक्टिक एसिड बनेगा। और एनर्जी का डिफरेंस है, एरोबिक में हमेशा हाई एनर्जी रिलीज होती है 38 एटीपीज फ्रॉम वन ग्लूकोज, एंड एनरोबिक में हमेशा 2 to 5 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। ये फ्लो चार्ट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें तीनों चीज़ें ही बता रखी हैं कि यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनरोबिक में होता है, एंड इन मसल्स हम जब ज़्यादा तेज एक्सरसाइज ज़्यादा अमाउंट में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज एरोबिक, जहाँ पे फाइनली CO2 H2 और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दिस everyone has to learn. Now this is ATP molecule diagram. So ATP is the energy currency of cell. Cell को कोई भी सेलुलर एक्टिविटी करानी हो, सेलुलर ट्रांसपोर्ट कराना हो, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, या फिर कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन कराना हो, वहाँ पर फॉस्फेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ATP एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, जब वो अपनी फॉस्फेट को ब्रेक करता है देन इट रिलीजेस सम एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी रिलीज करता है, और वही बॉन्ड एनर्जी उस पर्टिकुलर सेलुलर एक्टिविटी में यूज हो जाती है। तो इसी वजह से ये एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हायर ऑर्गेनिज्म को पूरा एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए जिससे वो गैसेस को ले सके, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले सके ज़्यादा अमाउंट में एयर से। दे कैन टेक इन द ऑक्सीजन एंड कैन मिक्स इट विद द ब्लड। So this is the respiratory system and respiration process. So respiratory system started from the nostrils. The air is passing, and nostrils are specially designed to moisturize the air to little, we can say it is also having nasal hairs, so that can act as a filter for some particles, dust particles. And we often sneeze when we get irritated, our mucous membrane get irritated, so we sneeze at that time, and so that only the purified air goes inside the through the throat. So there is such mechanism are there in the nostrils. Then the air is going into the pharynx, which is throat region. Afterwards there is larynx, which is our voice box. Then afterward there is a tube which is called trachea, windpipe, which is lined by the rings of cartilage, so that it cannot collapse due to the pressure which is experienced by the इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो बहुत सारा प्रेशर होता है चेस्ट कैविटी में, डायफ्राम रेगुलरली अप डाउन होता है, रिब्स आपकी अंदर बाहर जाती हैं जो हम सांस लेते हैं, तो वो प्रेशर को झेलने के लिए हमारा जो विंड पाइप होता है ट्रैकिया, उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। देन जो ट्रैकिया है वो लेफ्ट और राइट लंग में ब्रोंकाई से उसके अंदर ब्रोंकाई जाती है, ब्रोंकाई फर्दर ब्रांच होती है ब्रोंक्यूल्स में,
और ब्रोंक्यूल्स और फाइनली टर्मिनली एंड होती हैं एल्वियोलाइज में। एल्वियोलाइज में एक्चुअल एक्सचेंज होता है गैसेस का, बिकॉज एल्वियोलाइज के ऊपर कैपिलरी नेटवर्क होता है जो कि रिचली ब्लड सप्लाइड होता है। तो जो ऑक्सीजन रिच एयर है एनवायरमेंट से नेजल कैविटी में गई, then it goes in pharynx, then it goes in trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. Oxygen and carbon dioxide are exchanged at alveoli region. Then now the CO2 will go out through the nasal cavity. So it will come in bronchioles. From bronchioles, CO2 will come in bronchi. From bronchi, trachea, pharynx, nasal cavity, carbon dioxide rich air to the environment. तो इस तरह से मूवमेंट या फिर वेंटिलेशन हो गया हमारा। तो ये फ्लो चार्ट आपको ये बता रहा है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, तो आपको ये याद होना चाहिए। यू कैन मेक दैट दिस डायग्राम इन अ इजी वे आल्सो अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। देन these are the alveoli. The diagram of alveoli, you can very easily see that it is just bunch of very fine delicate membranes, and that is from outer side is richly supplied with arteries and veins. So the blood is flowing in very close to the membrane, and blood in the blood there is hemoglobin which is catching the oxygen and also releasing its CO2 inside the alveoli. तो ये एक्सचेंज हो जाता है, बहुत क्लोज एसोसिएशन में दोनों का मेम्ब्रेन होता है। कैपिलरी बेड और एल्वुलाई दोनों क्लोज एसोसिएशन में है, तो एक तरफ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन मिलती जाती है और उसकी CO2 दूसरी तरफ डिफ्यूज होती रहती है। तो दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे गैसेस, बिकॉज ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आराम से वो जारी है। रिब केज भी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में प्लस डायफ्राम दोनों मसल्स इंपॉर्टेंट हैं। जब रिब केज अंदर की तरफ आती है और डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, उस वक्त चेस्ट कैविटी में प्रेशर क्रिएट होता है जिससे एयर बाहर जाती है। जब रिवर्स होता है कि डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है और रिब केज बाहर की तरफ आती है, तो चेस्ट कैविटी का साइज बड़ा होता है तो एयर अंदर की तरफ आती है। तो ये आपका इंस्पिरेशन यानी इनहेलेशन के वक्त क्या हो रहा है और एक्सपिरेशन यानी एक्सहेलेशन के वक्त क्या हो रहा है, उसका फ्लो चार्ट है। इंसेक्ट्स में एक ट्रैकियल सिस्टम होता है, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उनके अंदर ट्यूबुलर नेटवर्क होते हैं और उनकी एब्डोमेन के ऊपर एक्सटर्नल पोर्स होते हैं, स्पायरिकल्स, ट्रैकियल ट्रंक, तो उनसे एयर एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज उनका होता है। अर्थ फॉर्म में स्किन के थ्रू होता है। स्किन में मॉइस्चर होल्डिंग प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, जो कि मॉइस्चर होल्ड करके उसको उसके स्किन को बहुत मॉइस्ट रखते हैं। और वहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क्स होते हैं बहुत सारे स्किन के जस्ट पास, तो डायरेक्टली गैस से अर्थ फॉर्म की स्किन ही रेस्पिरेशन कर लेती है। फिशेस में गिल्स के थ्रू होता है, यहाँ पे गिल्स दिखा रखे हैं। गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स रिचली सप्लाइड होते हैं। माउथ से दे आर टेकिंग द ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, वाटर जो वो ले रही है माउथ से, उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन घुली हुई होती है, वो गिल्स से थ्रू पास कराई जाती है फोर्सफुली, और ब्लड वेसल्स से वो जब पानी पास होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन अपनी प्लेस एक्सचेंज कर लेती है और CO2 और ऑक्सीजन इंटरचेंज हो जाते हैं, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। देन हमारी बात करें तो हम हीमोग्लोबिन के थ्रू, जो रेड ब्लड सेल्स में हमारा हीमोग्लोबिन है वो गैस एक्सचेंज करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन. So two life process we have discussed in this video: nutrition and respiration.